Welcome to all of you. Today we are going to discuss an important topic, that is the geo NGO collaboration. So here we'll discuss this topic in details. So let's start our discussion. Here geo means government organization and NGO means non-government organization. And here we will discuss the what is the collaboration. What is the collaboration between GO, government organization, and NGO, that is your non-government organization? There is a widespread belief that NGOs are in some ways better qualified than government organization. Okay, and these are, we can say, जैसे कि ये बोल रहा है कि नहीं, बहुत सारे सेक्टर में, बहुत सारे क्षेत्र में non-government organization are better qualified. Non-government organizations are better qualified than government organization. जैसे कि in successful implementation of development programs and policies or projects, we can say. अगर उनका कंट्रीब्यूशन अगर मिल गया, अगर वो इसमें योगदान दे दिए, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट development programs or activities will be improved. Okay. Then, according to Clark, 1991, वो बोले कि the NGO experience is almost wasted unless it is used to change the attitudes and practices of decision makers. अगर वो यूज नहीं हो पाया, उनका जो एनजीओ का जो एक्सपीरियंस है, अगर वो यूज नहीं हो पाया, तो वो वेस्ट हो जाएगा. किसमें यूज होना है? डिसीजन मेकर. डिसीजन मेकर जो है, उनका एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस जो भी है, उनको चेंज करने में अगर यूज नहीं हो पाया, तो वो वेस्ट है. क्या वेस्ट है? एक्सपीरियंस ऑफ द एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. Then here it is telling that in the study of geo-NGO interrelationships, Clark identified several approaches. बहुत सारे approaches वो दिए हैं, identify किए हैं, that NGOs could take in working with government body, ranging from direct cooperation with government agency to active efforts in obstructing the state's activities. तो ये इसका जो अप्रोच है, ये जो बोले हैं कि नहीं, जियो एनजीओ का रिलेशन, इंटर रिलेशनशिप को क्लर्क स्टडी किए और आइडेंटिफाई किए कुछ अप्रोचेस, एंड इट इज टेलिंग दैट एनजीओ कुड टेक इन वर्किंग विथ ए गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेगा, और उसका रेंज कहां से कहां तक जाएगा, कहां तक फैला होगा ना. पहले इसका रेंज होगा फ्रॉम direct cooperation with government agency to active efforts in obstructing the state's activities. ठीक है, तो ये हो गया इसका रेंज ऑफ एनजीओ that is working with your government bodies. Then, according to Clark, an NGO can choose
to forego any sort of involvement in the government's program. Then here, according to Clark, ये क्या बोल रहे हैं कि to forego here an NGO can choose to forego any sort of involvement in the government's program. Then second one, to complement the state by developing its own program to enhance the government's existing services. Or third one is to attempt to reform the state through deliberate collaboration with the pertinent government agency to improve the formulation and delivery of services of services. ठीक है? Here it is telling that according to Clark, an NGO can choose to forego any sort of involvement in the government program. Then और क्या है? To complement the state by developing its own program to enhance the government's existing services. Then third one is to attempt to reform the state through deliberate collaboration with the pertinent government agency to improve the formulation and delivery of services. ये हो गया आपका according to Clark an NGO can choose. Then here it is telling that of these the later approaches complementing the state and reform appear to be constructive forms of relationships. It should be constructive form of relationships and may be the most likely to foster an atmosphere in which both policy making and implementation can be made more effective. Okay, then although recent NGO government relationships have been characterized by mutual mistrust and hostility, NGOs and government organizations do work with each other under certain circumstances. In this context, Reddy and Rajasekhar's assertion was that वो क्या बोले रेड्डी एंड राजशेखर बोले कि in this context Reddy and Rajasekhar assertion ये बोले कि linkages with the government should not be uncritical. Linkages with the government should not be uncritical. NGOs have to play a dual role. They need NGOs have
टू प्ले ए डुअल रोल। एनजीओ क्या करेगा, टू प्ले प्ले डुअल रोल। कौन सा पहला रोल है, दे नीड टू कोलाबरेट, दे नीड टू कोलाबरेट with the government, and second one is they have to oppose these oppose those government policies which are which are detrimental to the poor. Okay, these are the two role that an NGO have to play, and the relationship with the government has to go beyond linkage or interaction and should function on the basis of working together in a mutually independent fashion. They have to work in a mutually independent fashion. Okay, then come to know the constants. What are the constants? Constants to successful geo NGO collaboration. The Asia Regional Workshop in Hyderabad, India, held on 16 to 20 September 1991, enumerated some constants to successful geo-NGO collaboration, which are as follows. So here एक वर्कशॉप हुआ था, the Asia Regional Workshop, जो कि the Asia Regional Workshop हुआ था। कब हुआ था ये और कहाँ हुआ था? हैदराबाद में, इंडिया, एंड 16 to 20 सितंबर 1991 में हुआ था। तो यहाँ पे वो कुछ कॉन्स्टेंट्स और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस जियो एनजीओ कोलैबोरेशन के बारे में फाइंड आउट किए थे। तो वो क्या है, पहला जो है, पहला कॉन्स्टेंट है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, lack of understanding of each other's goals, of each other's goal। तो यहाँ पे देखा गया था कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग उसमें लैक था, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं था, कुछ लेक्यूना पाया गया। तो वो अगर होगा तो जियो एनजीओ कोलैबोरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। देन सेकेंड वन, inability of government to identify the types of NGOs that might become reliable working partners. Here it is telling that inability of government inability to identify the types of NGOs that might become reliable working partners। ऐसा कौन सा एनजीओ होगा जो कि गवर्नमेंट के साथ अच्छे से काम कर पाए, उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाए, रिलायबल, ट्रस्ट, उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाए,
वो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए कंस्ट्रेंट। देन थर्ड वन, बेस्ट एनजीओ चूज करना, यहाँ पे एक कंस्टेंट हो गया है। देन रेस्ट्रिक्टिव गवर्नमेंट प्रोसीजर्स, रेस्ट्रिक्टिव गवर्नमेंट प्रोसीजर्स, ये भी है एक कांस्टेंट। रेस्ट्रिक्टिव गवर्नमेंट प्रोसीजर्स, जो भी प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो किए जाते हैं गवर्नमेंट। देन फोर्थ वन, प्रॉब्लम्स ऑफ एटीट्यूड distrust, problems of attitude or distrust, etc. on both sides. जियो एनजीओ कोलैबोरेशन में और एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है ट्रस्ट। अगर दोनों पार्टनर्स जो भी एनजीओ और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के बीच में ट्रस्ट होना जरूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं है दोनों साइड से तो प्रॉब्लम हो सकती है कोलैबोरेशन में। देन फिफ्थ कांस्टेंट इज लैक ऑफ क्लियर गवर्नमेंट पॉलिसी and guidelines on NGOs। एनजीओ के ऊपर जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी एंड गाइडलाइंस है वो क्लियर होना जरूरी है। अगर नहीं हो पाया तो दैट इज ऑल्सो विल बी ए प्रॉब्लम। देन सिक्स वन, पुअर कम्युनिकेशंस, पुअर कम्युनिकेशंस among the among NGOs and between GOs and NGOs। जैसे कि पता है कि कम्युनिकेशन गैप रह गया, मतलब ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर अच्छे से करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज रिक्वायर वेरी गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क between the government organization and NGOs and also within the different non-government organizations। ठीक है, एनजीओ एनजीओ के बीच में भी जो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के बीच में भी नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। इंफॉर्मेशन शेयरिंग अच्छे से हो पा रहा होगा तब जाके कोलैबोरेशन अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, देन कम टू दी 7 पॉइंट, शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टॉप डाउन वर्किंग methods of government and the participatory approaches of NGOs। देखो, sharp contrast between the top-down working methods of government and the participatory approaches of the NGOs। यहाँ पे देखिए कि गवर्नमेंट मोस्टली क्या करता है, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, और वहां पे क्या होता है, अथॉरिटी ऑर्डर देते हैं और ऊपर से नीचे तक आता है, बेनिफिशियरी तक, ऊपर से नीचे तक बेनिफिशियरी को मतलब ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन और फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेटरी मेथड नहीं यूज होता है मोस्टली, बट इन एनजीओ दैट इज मोस्टली फोकस ऑन दी पार्टिसिपेटरी मेथड्स और पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस। इट इन्वॉल्व्स द बेनिफिशियरीज also in that decision making process so that it will be work properly। Okay, okay, next is your lack of existing linkages, lack of 8 1 is lack of existing linkages among
इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे लिंकेजेस, इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन के बीच में जो लिंकेज रहता है, जो भी रिलेशनशिप रहता है, उसमें लेक्यूना पाया गया कि अगर ये रह गया, मतलब ये प्रॉब्लम रहा, तो ऑब्वियसली कोलाबोरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के बीच में, अगर लिंकेज या फिर नेटवर्क स्ट्रांग नहीं रहा तो। देन कम टू द नाइन्थ पॉइंट, दैट इज पुअर अंडरस्टैंडिंग, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ relative strengths and weaknesses on both sides। ये बोल रहा है कि पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, पुअर अंडरस्टैंडिंग अगर रहा कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में, अब जो ऑन बोथ द साइड्स मींस दैट इज ऑन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल्सो इन दी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अगर पुअर अंडरस्टैंडिंग रहा उसमें, उसको जानने में, तो उस वो भी एक कांस्टेंट हो सकता है। देन 10 नंबर, लैक ऑफ एनजीओ अकाउंटेबिलिटी टू देयर clients or to the public at large for the ways in which resources are used। तो यहाँ पे बोल रहे कि नहीं, लैक ऑफ एनजीओ अकाउंटेबिलिटी, लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ एनजीओ अकाउंटेबिलिटी to their clients or to the public at large for the ways on which resources are used। Then come to the here it is, these all are the constants related to NGO collaboration। These 10 points are the constants related to the NGO collaboration। Then here it is telling once a partnership between NGOs, that is government organizations, and NGOs, that is non-government organizations, has been established, problems may then be caused by three sets of factors। अगर अगर एक बार कोलाबोरेशन हो गया, एस्टेब्लिश्ड हो गया, पार्टनरशिप अगर एस्टेब्लिश्ड हो गया, देन थ्री फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। प्रॉब्लम्स में बी अराइज ड्यू टू थ्री फैक्टर्स। व्हाट आर दोस फैक्टर्स? अगर आफ्टर, यहां पे बोला गया आफ्टर पार्टनरशिप एस्टेब्लिश्ड, कौन सा फैक्टर? थ्री फैक्टर्स will affect the collaboration। First one is your incompatible working methods। For example, BRACS attempt to work with the government banking system in Bangladesh, which was slow and bureaucratic। Incompatible है, वर्किंग मेथड्स इनकम्पैटिबल अगर रहा तब ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल BRACS, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन
क्या किया, अटेम्प्ट टू वर्क विद द गवर्नमेंट बैंकिंग सिस्टम, जो कि बांग्लादेश का गवर्नमेंट बैंकिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए कोशिश किया, लेकिन दैट वाज वेरी स्लो एंड ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है, रूल रेगुलेशन बहुत था तो वो स्लो हो गया। गवर्नमेंट का तो पता ही है कि वो स्लो हो जाता है, तो इसीलिए स्लो प्रोसेस है थोड़ा, तो इसीलिए वो इनकम्पैटिबल वर्किंग मेथड्स। देन कम टू द सेकंड वन। सेकंड वन इज conflicts conflicts over vested interests in the rural power structure. For example, प्रोसिका फॉरेस्ट्री प्रोग्राम एक एग्जाम्पल है इसका। कॉन्फ्लिक्ट ओवर वेस्टेड इंटरेस्ट इन द रूरल पावर स्ट्रक्चर। ठीक है। देन थर्ड वन एंड और लास्ट वन, दैट इज contradictory objectives of collaboration. देखो, नॉर्मली एनजीओ का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, अगर वो दोनों समान हो गया, सेम हो गया तो चलेगा, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्टिव ही डिफरेंट रहा तो दिक्कत हो सकता है। तो BRACS जैसे कि ब्राक्स इंटरेस्ट इन एस्टेब्लिशिंग सस्टेनेबल गवर्नमेंट सर्विसेज इन इट्स पोल्ट्री प्रोजेक्ट्स, बट कंट्रास्टेड विद द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहता था कि डिजायर फॉर दैट इज इंटरेस्टेड फॉर मोर एफिशिएंट इनपुट डिलीवरी इन द शॉर्ट टर्म। ओके, तो ये हो गया आपका टोटल कंस्ट्रेंट्स रिलेटेड टू योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोलाबोरेशन। ठीक है, तो आज का सेशन, आज के क्लास में इतना ही। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे।